Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Rakesh, who has given me this Welcome, opportunity. ma'am. So this is a very basic presentation for the research scholars, then how they will collect the samples, how they will process, and how we can analyze the samples of diatom. So it is a very basic and initial structure of diatom research actually. So first we have to understand what is diatoms. I think Dr. Dwivedi has already described lots of information about diatoms. So it is just a basic idea of diatoms that diatoms are ubiquitous and very highly successful indicator for river ecosystem. And also they used as autotrophs for the base for the riverine food chain. And why we have selected this diatom? So there are lots of rationales behind that. So these are the items are very good ecological indicators for riverine ecosystem and very short generation time. Hence, they reflect short-term impact on the aquatic diversity, and also they are very sensitive to nutrient concentration, organic pollution, as well as heavy metals. They provide holistic and integrated measures of the health of riverine ecosystem, easily identified and with comprehensive documented taxonomy we have already established. And investigation of riverine diatoms are very important for the framework directives in many countries like European countries, US, and even we are also using this for the framework directives in riverine ecosystem. Now, this is a basic methodology of datum which I have described in this flow chart. So I have described each and every steps in detail. So students, they will do it precisely in their laboratory. So first we have to understand what are the important steps behind this techniques and significance. So first we have to sample the items. So before sampling, we have to select the sampling sites. So this is very important aspect. First we have to select the sampling sites. So what are the, important findings behind that? Like where we are going to sample the items. First, this is very important. Like when we are going to sample the items in low-tech system, in a river system. So then we have to sample the diatoms in different habitat. Means first we have to sample the diatom on the basis of their presence on different habitat. It may be epilithic, it may be epistemic, it may be epiphytic, and sometimes it may be planktonic. But in case of hilly terrain, this is very important because I think the students study area is the hilly terrain, because you all are working in the hilly areas. So in hilly areas, the planktons are very rare. Why? Because there is a flow in river system. तो जहाँ पे फ्लो होगा, जहाँ पे करंट वेलोसिटी होगी, वहां पे हमें प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स जो होंगे वो बहुत रेयर ही मिलेंगे. तो इट मीन्स वेयर वी हैव टू सैंपल द डाइटम्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें करना क्या है, हमें कौन से सबस्ट्रेटम को सिलेक्ट करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द सैम्पलिंग साइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर हैबिटेट. ठीक है. तो सबसे पहले हमने उनके हैबिटेट के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि कहाँ करना है. तो कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ एपिलिथिक सैंपल्स वी हैव टू कलेक्ट द stones, pebbles, cobbles, boulders. There are lots of, substratum which is present in the riverine ecosystem, because you will get easily the epilithic samples over there, because वहां पे जो substratum है, it's very rich in form of epilithic samples. So you can collect the samples in form of cobbles, pebbles, and boulders. So this is also very important where, which kind of substratum which we have to select. Like कौन से सैंपल्स हम उन्हें कलेक्ट करेंगे, जो रिवर के बैंक्स पे होंगे या जो सबमर्ज्ड होंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कम से कम कितनी डेप्थ से सैंपल्स को कलेक्ट करना है जब हम इपिलिथिक को सेलेक्ट करते हैं. सो वी हैव टू सैंपल एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर डाउन दी रिवर. तो हमें कम से कम रिवर से नीचे जाकर कम से कम 30 सेंटीमीटर की डेप्थ से उस सैंपल को कलेक्ट करना है. मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट दैट पेबल्स, cobbles, and boulders at least 30 centimeter
डाउन साइड। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस तरह से हम सैंपल्स को कलेक्ट करें। नाउ नेक्स्ट, अगर हम कॉबल्स कर रहे हैं, पेबल्स कर रहे हैं, बोल्डर्स कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज लॉट्स ऑफ रिसर्चर्स they have done their research on the basis of different types of substrata, different types of size of substrata means अगर हम epilithic samples में भी अगर हम select कर रहे हैं कि हमने stones में cobble, pebble and boulders किससे लेना है, because on the basis of size we can classify these in different forms। तो अगर हम बोल्डर से ले रहे हैं तो हमें जो फॉर्म्स मिलेंगे इट मे बी डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द पेबल्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एस्पेक्ट हो सकता है कि हम डिफरेंट साइज के सबस्ट्रैटम के बेसिस पे भी सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हिली टेरेन में सबस्ट्रैटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां इस एस्पेक्ट को हम फॉलो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एंड हाउ वी विल collect the samples, we have to scrape that sample with the help of some brush। तो ब्रश से हम क्या करते हैं, उन सैंपल्स को, उन पेबल्स को, कॉबल्स को क्या करते हैं, स्क्रेप करते हैं। स्क्रेप करने के बाद देन वी विल कलेक्ट द सैंपल इन दी वॉयल्स। तो कम से कम कितना सैंपल हमें कलेक्ट करना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कितना अमाउंट में सैंपल होना चाहिए। बिकॉज भाई हम गए और हमने पूरा का पूरा 1 लीटर का बॉटल भर लिया, तो ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें इतना ह्यूज अमाउंट में सैंपल चाहिए। सैंपल एटलीस्ट 10 ml, अगर मैं कहती हूँ कि 10 ml, बिकॉज हमें प्रोसेसिंग के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि उस सैंपल को अगर हमें सेम के लिए यूज करना है, बिकॉज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए भी अगर हमें यूज करना है तो वहां पे भी हमें प्रिसाइसली सैंपल्स चाहिए होते हैं। तो उस कंडीशन में कम से कम 10 ml का सैंपल हम सिलेक्ट कलेक्ट करें कहीं से भी अगर करते हैं, तो 10 to 20 ml ऑफ सैंपल वी हैव टू कलेक्ट। तो कैसे करेंगे, स्क्रेप करने के बाद उसके ऊपर हम वाटर डालते हैं, और वाटर डालने के बाद जो भी हमने स्क्रेप किया है वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो जो भी सैम्पलिंग ट्रे है उनमें हम उनको जो है ट्रांसफर करते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल ट्रांसफर इट इनटू द वॉयल्स। वॉयल्स में ट्रांसफर करने के बाद वी हैव टू प्रिजर्व दैट सैंपल इन 4% फॉर्मेलिन। हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी सैंपल्स लेंगे उनको हम फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके लाएंगे। 4% फॉर्मेलिन वी विल यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डायटम और इन एनी सबस्ट्रैटम। ये तो सैंपल प्रोसीजर हुआ फॉर एपिलिथिक। लेकिन नेक्स्ट जब हम पेरिफेटिक सैंपल्स करेंगे, तो पेरिफेटिक सैंपल्स मीन्स व्हेन वी विल गेट सम प्लांट आई मीन पार्ट, लाइक वो ट्विग्स भी हो सकते हैं, प्लांट लीव्स भी हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ मॉसेस, मतलब किसी भी तरह का प्लांट का कोई भी पार्ट अगर हमें मिलता है, उस पे अगर कोई भी एल्गल ग्रोथ हुई है, वी कैन कट दैट पार्ट एंड सैंपल, we can preserve this sample or we can take the sample in the vials and also dip in water। हमेशा उसको वाटर में डिप करके ही रखेंगे। ये नहीं कि हमने सिर्फ प्लांट ट्विग लिया और जो भी प्लांट पार्ट हुआ उसको रखा और उसको हम लेबोरेटरी में ले आएंगे, तो इट मे बी हार्मफुल फॉर दैट आई मीन सैंपल। वो सैंपल हो सकता है कि लेबोरेटरी जाते जाते वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कहने का मतलब उसको प्रॉपरली अगर हमें कलेक्ट करना है तो वी हैव टू टेक सम वाटर इनसाइड दैट and after we have to preserve the same one। तो epilithic, epiphytic and the next is प्लैंक्टनिक। अगर हम प्लैंक्टोनिक सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी प्लैंक्टोनिक सैंपल, वी हैव टू फाइंड आउट दी प्लैंक्टन नेट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, प्लैंक्टन नेट। नाउ वी हैव टू सीव एटलीस्ट 100 लीटर ऑफ वाटर। कम से कम हमें 100 लीटर ऑफ वाटर को जो है उससे सीव करना होता है, उस प्लैंक्टन नेट से। तो 100 लीटर ऑफ वाटर जब हम सीव करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ डेब्रिसेस व्हिच हैज बीन कलेक्टेड इन दैट नेट। तो वो उस नेट में कलेक्ट हो जाता है। देन वी हैव टू वॉश दैट नेट। हम उसको उस नेट को वापस से करके, और जो हमारी सैम्पलिंग ट्रे होती है उसमें हमने थोड़ा सा वाटर लिया, देन वी हैव टू वॉश दैट क्लॉथ। जो हमारा प्लैंक्टन नेट होता है उस क्लॉथ को हम उसमें वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद दैट सैंपल हैज टू बी प्रिजर्व इन दैट वॉयल। उसमें प्रिजर्व करने के बाद अगेन दैट सैंपल इज वेरी गुड फॉर दी लेबोरेटरी प्रोसेसेस। तो ये हमारे 3 अलग अलग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं जो अलग अलग सबस्ट्रैटम के बेसिस में हम उनको सैंपल करते हैं। तो एपिलिथिक, एपिफिटिक एंड प्लैंक्टोनिक। सो सेलेक्टिंग सैम्पलिंग साइट्स एंड आइडियल सैम्पलिंग कंडीशंस, then the collection technique and then the preservation methods। So it is a complete aspect of sample collection।
Fine. So sample collection हो गया. Then what we have to done? Then the sample preparation is how we will prepare that sample for laboratory analysis. कैसे हम उन sample को analyze करेंगे, कैसे हम उनको prepare करेंगे. Again, there is a lots of important procedures for that. So there are lots of procedures according to different scientists, different workers, but there is a very important and very short method in which we can use a little amount of acids, little amount of peroxides, and we can analyze, we can prepare the samples in a very precisely in a proper way. So first we have to take many test tubes अकॉर्डिंग टू योर सैंपल्स. जितने भी आपके सैंपल्स है उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू टेक दी टेस्ट ट्यूब्स. सो टेस्ट ट्यूब्स में आपने क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू पुट द सैंपल्स व्हाट वी यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम दी सैम्पलिंग लोकेशंस. तो आपने क्या करना है कि उस टेस्ट ट्यूब में कम से कम 2 to 3 ml इतना सैंपल आपको उसमें डालना है. 2 to 3 ml ऑफ सैंपल्स पुट इनटू द टेस्ट ट्यूब. देन आफ्टर दैट यू हैव टू पुट, सबसे पहले हमने क्या करना है, उस सैंपल को हम वाटर से वॉश करेंगे. नेक्स्ट, तो डिस्टिल्ड वाटर से आपने कम से कम 2 बार वॉश करना है. तो वॉश करने का मतलब क्या है, हाउ यू विल वॉश. तो वॉश करने के लिए आपने उसमें डिस्टिल्ड वाटर पूरा अप टू द माउथ उसको फिल करना है. फिल करने के बाद आप उस सैंपल को, उस टेस्ट ट्यूब को एज सच छोड़ देंगे जब तक कि सारा सैंपल्स आपका सेटल्ड ना हो जाए. जैसे ही वो सैंपल सेटल्ड हो जाएगा, यू हैव टू डीकेंट दैट वाटर. ऊपर जितना भी पानी है उतना आपने उसको डीकेंट करना है. डीकेंट आप जितना मैक्सिमम आपको लगे कि आपका सैंपल उसमें डीकेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटर डीकेंट हो रहा है, आप उसको डीकेंट करेंगे. एंड जो रेस्ट पार्ट है उसको आपने फिर से एक बार वॉश करना है. तो दिस विल टेक 3 hours मैक्सिमम. तो 3 घंटे में आप उसको 2 बार वॉश कर सकते हैं. देन वॉश करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड ट्रीटमेंट करेंगे. सो एसिड ट्रीटमेंट के लिए यू कैन यूज द HCl एज वेल एज H2SO4. तो आप HCl भी यूज कर सकते हो और H2SO4 भी यूज कर सकते हो. कई जगह पे HNO3 भी आपको मिलेगा, तो आप HNO3 भी यूज कर सकते हो. ठीक है. सो आपको कितना डालना है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कितना आपको HNO3 या कितना आपको HCl या कितना आपको H2SO4 डालना है, इट इज डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सैंपल कि सैंपल कैसा है. अगर सैंपल बहुत टर्बिड है, बहुत डेंस है, आपको सैंपल अगर बहुत टर्बिड है, तो इट मींस इट नीड्स लॉट्स ऑफ एसिड. तो एटलीस्ट हाफ ऑफ, मतलब आपको कम से कम हाफ टेस्ट ट्यूब को फिल करना है एसिड से. तो हाफ फिल करने के बाद अगर आपका सैंपल बहुत क्लीन है, अगर ऐसा लगता है कि सैंपल बहुत क्लीन है, उसमें बहुत डेब्रिसेस नहीं है, इन दैट केस आपको 1/4 आपको सिर्फ उसमें फिल करना है एसिड. ठीक है. क्योंकि इसके पहले जो प्रोसीजर्स थे, उन प्रोसीजर्स में हम जनरली जो प्रोसेस करते थे प्रिपरेशन के लिए, उसमें हम टेस्ट ट्यूब की जगह पे जो है बीकर्स यूज करते थे. और बीकर्स में 250 ml एटलीस्ट हम जो है एसिड डालते थे. तो आप समझिए कि 250 ml इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ एसिड. तो अब ये एक सिंपल और बहुत प्रिसाइज प्रिपरेशन प्रोसेस है जिसमें बहुत कम एसिड इन्वॉल्व होता है, बहुत कम हम इसमें पेरोक्साइड्स यूज करते हैं, और हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर नाउ. तो आपको क्या करना है, 1/4 एसिड उसमें ट्रांसफर करना है. देन आफ्टर दैट आपको उसको पूरे एक दिन के लिए 24 hours के लिए उसको आपको छोड़ देना है. एंड आफ्टर 24 hours what you have to done, you have to wash that sample with the डिस्टिल वाटर अगेन 2 times. तो 2 बार आपने उसको वॉश किया. एंड वॉश करने के बाद व्हाट हैज टू बी डन नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आप टू पुट दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स. तो हम उसमें डाइजेशन प्रोसेस में फिर से हम उसमें H2O2 डालेंगे. H2O2 कितने किस परसेंटेज का होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 30% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन प्रोसेस. तो आपने क्या करना है कि फिर से H2O2 उसमें डालना है. और H2O2 का अमाउंट कितना होगा, 1/4 ओनली, 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो आपने सिर्फ 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब उसमें आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है डालेंगे. आफ्टर दैट आप उसको पूरे 24 hours के लिए छोड़ देंगे. नेक्स्ट डे यू हैव टू
heat that sample in the with the help of hot plate. हॉट प्लेट में कैसे करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। तो टेस्ट ट्यूब को हीट करने के लिए यू हैव टू टेक दी बीकर, बिग बीकर, डिपेंड्स आपके कितने सैंपल हैं। तो आपके जितने सैंपल हैं उस बेसिस पे आप बीकर्स लेंगे, और बीकर में हाफ ऑफ बीकर फिल्ड विथ वाटर, उसको वाटर से फिल कर देंगे एंड पुट योर आई मीन टेस्ट ट्यूब्स इन दैट बीकर। उसके बाद आप उसको 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे। जैसे ही वेपर निकलने लगे, जैसे ही सैंपल्स में से वेपर निकलने लगे, तो वेपर्स जैसे ही निकलेगा आपने उसके बाद 2 से 3 मिनट तक उसको और हीट करना है, उसके बाद उसको आपने स्टॉप करना है। आफ्टर दैट जैसे ही आपका सैंपल कूल डाउन हो जाए, कूल डाउन होने के बाद उस सैंपल में से आपको अगेन H2O2 को डिकेंट करना है। डिकेंट करने के बाद अगेन वॉश विद 2 times विद द डिस्टिल्ड वाटर। अब इस प्रोसेस के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये आता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनमें डेब्रिसेस होने की वजह से वो ऐसे ट्रीटमेंट के बाद भी सैंपल्स क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? सो यू हैव टू टेक सम सैंपल्स एंड यू जस्ट टेक अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको माइक्रोस्कोप में देख करके एक समझ में आएगा कि कैसा सैंपल आपका प्रोसेस हुआ है। इज इट अगेन फिल्ड विद डेब्रिसेस और इट इज क्लीन? तो एवरीथिंग विल बी क्लियर अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर लगता है कि उसमें डेब्रिसेस हैं, अभी भी जो आइटम्स हैं वो क्लब्ड मिलेंगे आपको, वो लगेंगे कि बहुत सारे ऐसे फाइबर्स, मतलब वो आपस में बिल्कुल क्लब लिखेंगे क्लियरली, मतलब आपको फॉर्म्स नजर नहीं आएंगे, तो व्हाट यू हैव टू डन नेक्स्ट? तो आपको क्या करना है कि आपको सेंट्रीफ्यूज करना होगा उसको। तो सेंट्रीफ्यूज आपको कितने आरपीएम पे करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाइटम्स के लिए हम जनरली जो सेंट्रीफ्यूज प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो हम 2500 to 3000 आरपीएम पे यूज करते हैं। ठीक है, सो 2500 to 3000 आरपीएम पे आपको उस सैंपल को जो है सेंट्रीफ्यूज में कम से कम 3 to 4 मिनट के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर सैंपल इज मच क्लियर देन बिफोर। तो बहुत हद तक वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के दैट इज द प्रोसेस्ड सैंपल, वो आपका प्रोसेस्ड सैंपल होगा। अब उस प्रोसेस सैंपल का करना क्या है, देन यू हैव टू प्रिपेयर द स्लाइड्स। सो कैसे स्लाइड प्रिपेयर करनी है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ आर्ट ऑफ आई मीन प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि कैसे आप उसको प्रोसेस, कैसे आप उसकी स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। तो स्लाइड प्रिपरेशन में क्या करना है आपको, पहले तो बहुत प्रॉपरली आपको सैंपल्स को टैग करना पड़ता है, क्योंकि सैंपल्स को टैग, अगर आपने उनकी मार्किंग नहीं की, उनको प्रॉपरली लेबल नहीं किया, तो उसमें आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपने अगर 20-25 सैंपल एक साथ प्रोसेस किए और उनको प्रॉपरली अगर आपने लेबल नहीं किया, और जब आप उनकी स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि स्लाइड प्रिपरेशन के टाइम पे क्या करना है आपको, माइक्रोस्कोप में इतना स्पेस नहीं होता है कि हम उनकी मार्किंग प्रॉपर कर पाए। तो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप हर स्टेप पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे आपको अपने सैंपल की लेबलिंग का ध्यान रखते हुए हर काम करना है। तो वो क्या करना है वो आपके अपने अपना आपका आउटलुक है, आप अपने अकॉर्डिंग उनको जो भी नंबर्स देना चाहे वो दे सकते हैं। तो जब आपने कवर स्लिप लेना है, तो उस कवर स्लिप में आपके कॉर्नर में एक छोटा सा मार्क आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपने करना है। फिर क्या करना है कि आपको, आपने जो भी सैंपल प्रोसेस किया उस सैंपल में से आपको 1 to 1.5 ml इतना सैंपल एटलीस्ट आपको यूज करना है, जो आपको कवर स्लिप के ऊपर स्प्रेड करना है। अब आप सोचिए कि एक लिक्विड सैंपल को हम कवर स्लिप पे स्प्रेड करें और वो सैंपल जो है उस कवर स्लिप से बाहर भी ना जाए। तो ये एक तरह का आर्ट ही है, बहुत केयरफुली हमें ये काम करना होता है। तो आप सब इस चीज को बहुत ध्यान से करिएगा, लेकिन आप जैसे करोगे तो यू विल गेट द एक्सपर्टीज, आपको धीरे धीरे एक्सपर्टीज इसमें आ जाएगी और बहुत इजीली आप उसको कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपको कवर स्लिप के ऊपर 1 to 1.5 ml ऑफ सैंपल लेना है एंड जस्ट ड्रॉप द सैंपल ऑन द कवर स्लिप। तो कवर स्लिप पे वो सैंपल को आप डालेंगे और ऐसे डालना है कि वो पूरी कवर स्लिप जो है वो कवर हो जाए, कवर स्लिप का कोई भी पार्ट छूटे नहीं। तो पूरी कवर स्लिप फिल हो जाए उस सैंपल से। तो आपको ड्रॉपर की हेल्प से धीरे धीरे उसमें सैंपल्स को
डालना है। तो इस तरह से जब वो सैंपल्स अच्छी तरह से पूरी कवर स्लिप पे फैल जाए, देन आपको पूरे 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ना है अंडर दी। आप किसी तरह का उसमें लैंप वगैरह यूज कर सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप देख लीजिए किस तरह का वहां पे अगर धूप है तो धूप से भी सैंपल्स ड्राई हो जाएंगे, तो उसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। तो ये ध्यान रखिए जब भी आप सैंपल को कवर स्लिप पे डालते हो, तो ध्यान रखिए कि आपने जो सैंपल प्रोसेस किया है वो सैंपल कैसा है, मतलब वो सैंपल अभी भी टर्बिड है। क्योंकि डिपेंड्स कि अगर बहुत सबस्ट्रेटम रिच है, अगर ऑर्गेनिज्म बहुत रिच है, तो आप कितना भी उसको प्रोसेस करोगे वो सैंपल आपको टर्बिड, समहाउ वो टर्बिड दिखेगा। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, उस सैंपल को हमेशा आपको डिस्टिल्ड वाटर में उसको पहले आप डेफिनेटली उस सैंपल जो बहुत टर्बिड है उसमें आप मेकअप कर लें आप उसको, कि आपने 100 ml कर लिया या 50 ml उसको मेकअप कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। देन वो सैंपल की टर्बिडिटी को आपको कम से कम करना है, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी उसमें आ जाए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्लाइड होगी वो प्रॉपरली अच्छे से बनेगी। अदरवाइज जो भी फॉर्म्स होंगे वो ओवरलैप्ड होंगे और आप क्लियरली किसी भी फ्रस्टुला को प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सैंपल कैसा है वो आपको देख करके और करते करते आप इसको सीखेंगे कि हमें कैसे करना है। देन आफ्टर दैट जब वो ड्राई हो जाए, तो जब ड्राई होगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, अगर कोई सैंपल बहुत टर्बिड था और आपने उसको ड्राई किया तो आप देखेंगे जब वो सैंपल ड्राई होगा तो ड्राई होने के बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होगी, मतलब वो लगेगा कि एकदम ब्लर है, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा है उसमें आर पार। लेकिन जो क्लियर होते हैं जिनमें मतलब जो सैंपल्स प्रॉपर कह सकते हैं हम, उन सैंपल्स के ड्राई अप होने के बाद भी उस कवर स्लिप के आप आर पार देख पाएंगे। तो ये ड्राई होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि आपका जो सैंपल है या आपने जो कवर स्लिप पे जो सैंपल डाला है वो प्रॉपरली आपने डाला है या नहीं डाला है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट जब 24 आवर्स हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट क्या करना है आपको, यू हैव टू यूज दैट माउंटिंग मटीरियल मीडिया, जो माउंटिंग मीडिया अभी आप लोग कनाडा बाल्सम से आई थिंक यूज कर रहे होंगे सर। आई थिंक डीपीएक्स। वही यूज कर रहे होंगे, लेकिन सर ने अभी डीपीएक्स, ओके। सो डीपीएक्स से आप लोग उसको करते होंगे, डीपीएक्स की जगह पे अब आप लोग नेफ्रेक्स यूज करेंगे बिकॉज उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है और उसमें आपको जो भी वॉल्स होंगे वो बहुत क्लियर भी नजर आएंगे। तो डी नेफ्रेक्स को कैसे यूज करेंगे, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेफ्रेक्स आपको दो तरह से मिलता है, या तो नेफ्रेक्स एज सच ओरिजिनल नेफ्रेक्स मिलेगा, नहीं तो समटाइम नेफ्रेक्स मिक्स्ड विथ टोलुइन। तो टोलुइन के साथ में उसको हमेशा हमें मिक्स करके यूज करना होता है, क्योंकि जो नेफ्रेक्स है वो सॉलिडी फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो हम जब भी नेफ्रेक्स यूज करेंगे उसको थोड़ा सा हमें हीट करना पड़ेगा, और कभी भी नेफ्रेक्स को हम एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सर ने उसको मंगाया है तो बहुत केयरफुली उसको यूज करिएगा और बहुत केयरफुली उसको रखिएगा। तो उसको हमेशा डार्क बॉटल में रखते हैं। डार्क बॉटल में रखने के बाद भी आप उसको हमेशा किसी जो है डार्क कलर के पेपर से उसको रैप करके रखिएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, मतलब आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आप इसको यूज भी करते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नेफ्रेक्स को हमेशा डार्क बॉटल में रखेंगे, उसको हमेशा डार्क कलर के पेपर से रैप करके रखेंगे। तो नेफ्रेक्स अगर टोलुइन के साथ मिक्स होगा तो इन दैट केस आपको सिंपल हीट करना है, और हीट करके आपको 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप इज सफिशियंट फॉर 1 स्लाइड। एक ड्रॉप आपको यूज करना है, उससे ज्यादा आपको यूज भी नहीं करना है। देन आपने जैसे ही स्लाइड पे उसको रखेंगे, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जब हम स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। अभी तो आपने कवर स्लिप पे ड्राई किया, ड्राई करने के बाद यू हैव टू मेक दी स्लाइड्स। अब आपको स्लाइड प्रिपरेशन करनी है तो उसके पहले आपको हॉट प्लेट पे उन स्लाइड्स को पहले हीट होने के लिए रखना है, ठीक है। आप सिंपल ऐसे नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले हॉट प्लेट पे उन स्लाइड्स को हीट करने के लिए रखना है, और वो टेम्परेचर 20 या 30 डिग्री के आसपास होगा। तो जैसे ही आपकी स्लाइड थोड़ी सी हीट हो जाए, तो उसके ऊपर आपने 1 ड्रॉप वो नेफ्रेक्स डालना है। और जैसे ही आप नेफ्रेक्स डालोगे तो नेफ्रेक्स बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आएगा आपने कवर स्लिप को किसी फॉरसेप की हेल्प से, निडल की हेल्प से उसको उसके ऊपर प्लेस करना है कि एयर बबल्स ना आए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। एंड आफ्टर 2 और 3 आवर्स वो सैंपल आप वो आपकी स्लाइड कंप्लीटली
फाइनली वो आपकी प्रिपेयर हो जाएगी फॉर द आइडेंटिफिकेशन. सो इट इज अ कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम द सैम्पलिंग टू प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड. तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है और इसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है. आपने 2-3 बार अगर आपने किया तो आपको इसकी एक्सपर्टीज आई मीन हो ही जाएगी. राकेश सर ऑलरेडी ही हैज डन लॉट्स ऑफ, ही हैज प्रिपेयर्ड लॉट्स ऑफ स्लाइड्स. पवनिका मैम ने भी बहुत सारी स्लाइड्स बनाई है, ऐसा मुझे पता है. तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी स्लाइड्स बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद आप लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब वाला फॉलो नहीं किया है. नहीं, एम आई अभी नहीं। राइट सर? हाँ हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम लोग बार के सैंपल्स कर रहे हैं तो उसमें हमें सोक करना पड़ता है सैंपल को। तो इस वजह से हमारे मटेरियल ज्यादा होता है, सोकिंग मटेरियल। तो फिर उसको हम पूरा। तो आप उसको भी टेस्ट ट्यूब में प्रोसेस करके देखिए. हम्म। एक बार आप उसको भी टेस्ट ट्यूब में प्रोसेस करके देखिए, क्योंकि एसिड्स जो है बहुत यूज नहीं होता है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ एसिड्स बहुत है. हाँ, ये तो है। तो ये। आप इसको करके देखिए, और सेंट्रीफ्यूज अगर आपके पास है तो सेंट्रीफ्यूज करके देखिए, क्योंकि मैं पहले इसी प्रोसीजर से करती थी सर, लेकिन मैंने एकदम मूव ऑन कर लिया है और सैंपल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छा स्लाइड प्रिपेयर हो रहा है. तो ठीक है। इसको आप लोग फॉलो करिए सर, इट इज वेरी गुड. हम्म। इस। नेक्स्ट, तो ये आपका स्लाइड प्रिपरेशन. अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. क्योंकि अब डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है. मैं आपको एक और प्रेजेंटेशन दूंगी इसके बाद, लेकिन अभी मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातों को इसीलिए बता रही हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन में अब हमें क्या करना है. सो देखिए, दो चीजें हैं. सबसे पहले हम अगर हम डेंसिटी करनी है, डेंसिटी अगर हमें करनी है ऑर्गेनिज्म की, सो वी हैव टू एनालाइज द सैंपल्स फ्रेश, जैसा हमने उनको कलेक्ट किया है. मींस जो हमने प्रोसीजर से पहले, मींस जो हमारा फर्स्ट स्टेप था सैम्पलिंग ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड, जैसे हमने फ्रेश सैंपल कलेक्ट किया उसी सैंपल को हमको यूज करना है फॉर डेंसिटी. ये बात नोट कर लीजिए ध्यान से बच्चों आप लोग, कि हम जब भी डेंसिटी अगर हमें करनी है तो डेंसिटी के लिए वी हैव टू यूज द ओरिजिनल सैंपल विच वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड. तो उसको करने के लिए, डेंसिटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेंसिटी करने के लिए हमें चाहिए सिज़ुविक रैप्टर सेल. सिज़ुविक रैप्टर सेल एक स्लाइड होता है, उस स्लाइड में 20 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल होते, 50 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल होते हैं एंड 20 ब्लॉक्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं. तो इस तरह से उसमें इतने ब्लॉक्स होते हैं. वो एक, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दो कवर स्लिप्स को आप ऐड करेंगे जब, तो उतना एक साइज होता है. वो भी बिल्कुल स्लाइड की तरह ही एक इक्विपमेंट है, एक छोटा सा इक्विपमेंट बिल्कुल स्लाइड की तरह होता है. उस स्लाइड में आपके हो मतलब एक कह सकते हैं कि खूब सारे रेक्टेंगल्स बने होते हैं. तो 50 रेक्टेंगल्स हॉरिजॉन्टली एंड 20 रेक्टेंगल्स वर्टिकली. तो आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप तभी आप सैंपल लेते हो, आपने उस सैंपल को उसमें डालना है. डालने के बाद आपको कवर स्लिप रखनी है. कवर स्लिप रखने के बाद आपको एनालाइज करना है कि उस सिंगल ब्लॉक में आपको कितने ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं. दिस और ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, बिकॉज आपका जो सैंपल है वो एक एल्गल सैंपल है. ठीक है, हमारा पर्पस है कि हमें डाइटम्स करना है, बट अल्टीमेटली दैट सैंपल इज कलेक्टिव सैंपल ऑफ एल्गी. तो हमने अगर उसमें फोकस करना है डाइटम्स पे, तो आप सिर्फ डाइटम्स को देखिए. अदरवाइज आप उसमें आप उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइटम के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो आपको बेसिलेरियोफाइसी के फॉर्म में ही करना होगा. तो आपने हर ब्लॉक में देखना है कितने डाइटम्स आपको नजर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट ब्लॉक देखा और उसमें 2 फॉर्म्स नजर आए, सो यू हैव टू मार्क इट इन फॉर्म ऑफ टैली. जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं ना, टैली मार्क यूज करते हैं जो, तो टैली के फॉर्म में आपने उसको मार्क करना है. तो इस तरह से एटलीस्ट डेंसिटी के लिए कितने फॉर्म्स आपको कम से कम उसमें काउंट करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिपेंड्स कि अगर कोई बच्चा डिसर्टेशन करता है, मतलब हम लोगों ने, मतलब कुछ जो भी लिटरेचर है उन लिटरेचर के बेसिस पे ही हमने इसको थोड़ा समझा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ 150 to 250 फॉर्म्स अगर हम काउंट करते हैं, 150 to 250 फॉर्म्स अगर हम काउंट करते हैं, तो इट इज सफिशियंट फॉर द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो आपको इस तरह से, अच्छा इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम अगर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टली करते जाएं, वर्टिकली कर रहे हैं तो हम वर्टिकली करते जाएं. तो इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, एक बार हमने सैंपल लिया और एक बार सैंपल में हमें, अगर मान लीजिए आपने 20 फॉर्म्स ही सिर्फ उसमें काउंट मिले हैं, तो आपको उसी तरह से
इसमें आपको कई बार ड्रॉप का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में क्या डिफरेंस है आप समझिए। क्वांटिटी का मतलब तो आप समझते हो, लेकिन क्वालिटी से क्या मतलब है यहाँ पे। यहाँ क्वालिटी से मतलब है कि जो भी फॉर्म्स आपने देखे, ठीक है, जो भी फॉर्म्स आप देख रहे हो उन फॉर्म्स में कौन अबंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने आपने प्लैंटन्स देखा, उसमें बेसिलरियोफाइसी देखा, क्लोरोफाइसी देखा, साइनोफाइसी देखा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गल, तो आपको क्वालिटेटिवली कौन से फॉर्म्स जो है वो अबंडेंट मिले, तो आप उसको कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेली काउंट, आप कहेंगे कि दीज फॉर्म्स आर क्वालिटेटिवली अबंडेंट। लेकिन क्वांटिटेटिवली की बात जब आएगी, तो क्वांटिटेटिवली में हमें क्या करना है, वहां हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ सिंपल हम सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे बता रहे हैं कि किसकी क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये दो चीजें आप कभी भी देखेंगे तो ये इनिशियल एस्पेक्ट है जब भी हम प्लैंक्टन्स को करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्लैंक्टन्स। तो क्वालिटेटिव के लिए हमें ड्रॉप्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितने ड्रॉप में हमने देखा। फर्स्ट ड्रॉप 9 फॉर्म्स, सेकेंड ड्रॉप 20 फॉर्म्स, थर्ड ड्रॉप 50 फॉर्म्स, तो इस तरह से एटलीस्ट 20 ड्रॉप्स हमें करने पड़ते हैं, तब जाके हम बता पाते हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए सफिशिएंट है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में ड्रॉप का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम सिस्विक रैप्टर सेल में ड्रॉप्स को पुट करते हैं। तो एटलीस्ट 20 ड्रॉप्स को हमें करना है, उस 20 ड्रॉप्स के बेसिस पे जो भी रिजल्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेली। ठीक है, अब उन टैली नंबर्स को हम यूज करते हैं जब डेंसिटी के फॉर्म में, मतलब वही आपका ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन वही होगा, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को आप दो तरह से, एक तो आपने सिंपली बता दिया कि कौन अबंडेंट है, फिर आपने अब उनकी डेंसिटी बताई। तो डेंसिटी बताने के लिए आप डेंसिटी ऑर्गेनिज्म वाइज बता सकते हैं, मीन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिलरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, अगर आप करते हो तो। और अगर आपको सिंपल बैसिलरियोफाइसी करना है तो बैसिलरियोफाइसी का करेंगे। तो मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको भी एक प्रेजेंटेशन और दूंगी, जिस प्रेजेंटेशन में सारे स्टैटिस्टिकल जो आपके फॉर्मूला हैं, कैसे उनका हम एस्टिमेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट, वो सारी चीजें मैं आपको वहां बताऊंगी। आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दूंगी, करना क्या क्या होता है हमें। ठीक है, क्योंकि वो स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो बच्चों के पास लैपटॉप या उनका मोबाइल या जो भी चीजें हैं वो आप रखेंगे, और मैं आपको कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन पहले से शेयर करूंगी कि ये चीजें आपके पास रहनी चाहिए, और ये बेसिक चीजें हैं जो आप अपने पास पहले से करके रखो, जिससे मैं आपको बताती रहूं तो आपको वो चीज समझ में आए। सर ठीक है, मैंने जो सोचा है ठीक है। वो ये एक्चुअली सोचा है। तो ठीक है। थोड़ा एक बेसिक आइडिया बच्चों को पहले लगे कि करना हमें क्या क्या है। हाँ ठीक हाँ, है, बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया डेंसिटी, जो हमने प्रिपरेशन, जो भी हम सैंपल लेते हैं इनिशियल सैंपल, उसमें हमने करना है। अब क्या करना है, जब हमारी स्लाइड बन गई, अब आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड व्हाट वी हैव टू डू फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमें क्या क्या करना है। तो बस पहली चीज हो गई, जो हम क्या करते हैं, सबसे तो हम ऑर्गेनिज्म को मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज बताऊं स्टूडेंट्स को, अगर डाइटम करना है तो डाइटम्स के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे, मैं सर को शेयर कर दूंगी वो सारे लिंक्स, जिन लिंक्स की हेल्प से आप आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प मिलेगी। इवन कुछ मैं आपको एक दो चीजें दिखाऊं, अभी यहीं पे अवेलेबल है, तो मैं आपको कहूंगी स्टूडेंट्स को आप अभी बोलिए कि वो ये a quick guide for common item genera in fresh water. It is a very important and very simple key. It is available 7 या 8 शीट्स हैं सर इसकी। ठीक है, अच्छा। सो ये कैथे का एक डाइटम का की है जो 7 या 8 पेजेस का है बस। तो स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी, मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को यही इनिशियली उनको प्रपोज किया कि आप इसको अपने कमरे में जहां आप रहते हो वहां पे इनको हमेशा स्टिक करके रखो, जिससे आप पूरे टाइम इनको कभी उठो तो देखते रहो कि ये कौन से फॉर्म्स हैं, कैसे इनका, मतलब इस तरह से एक चीजें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी और आपको बार बार वो चीज दिखेगी तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ 7 8 पेज का है सर ये। मैं इसका अच्छा। लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, इसको आप बिल्कुल। सब प्रिंट निकाल के अपनी लेबोरेटरी में जहां आप बैठते हो वहां भी लगा लीजिए। हम्म। मैंने लगा रखा है ये अपने अच्छा आइडिया। लैब में, जिससे बच्चे हमें। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन का बहुत सिंपल की है। तो जीनस लेवल पे पहले आप इनको आइडेंटिफाई करिए।
और मैं स्टूडेंट्स हमारे को ये पास अपना कहूंगी लगभग कि केवल 2 मिनट बाकी है, मीटिंग रिमेनिंग टाइम इज 2 मिनट्स। ओके ओके ओके, सो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट मीटिंग, और जैसा आप कहेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास और भी चीजें हैं, आप हाँ जैसा तो कहेंगे। हाँ, वी कैन कंटिन्यू इन पार्ट 2 जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन आफ्टर 2 मिनट। ओके फाइन 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 फाइन, ठीक है ठीक है। तो मैं अभी इसको नया कुछ नहीं स्टार्ट करती हूँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ इसीलिए। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स को मैं एक टास्क दूंगी, जिससे कि आपको डाइटम्स को करने में बहुत आसानी होगी। डाइटम्स को जीनस के लेवल पे आप अपना एक दोनों स्टूडेंट्स आपस में डिवाइड कर लीजिए कि आपने क्या करना है। कि एक स्टूडेंट जो है वो सेंट्रेल्स तो बहुत कम है, कम फॉर्म है, पिन्नेल्स में ही आपको करना है। और पिन्नेल्स में भी आपने ए रैपिड, मोनो रैपिड, बाई रैपिड, अगर इस तरह से स्यूडो रैपिड की हम बात करें तो सबसे ज्यादा फॉर्म्स जो है वो बाई रैपिड्स के हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट बाई रैपिड करे, रेस्ट 3 जो है वो एक स्टूडेंट करे। तो इस तरह से जीनस के लेवल पे आप अपनी खुद की एक नोटबुक बनाएं, और कहाँ से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसमें क्या इंफॉर्मेशन रखनी है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है, और उसकी इकोलॉजिकल क्वालिटी क्या है। इकोलॉजिकल क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइटम्स, की उसकी इकोलॉजिकल क्वालिटी मतलब वो किस पीएच पे मिलता है, वो किस चीज का इंडिकेटर है। पोल्यूशन है तो किस तरह के पोल्यूशन, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कलेक्ट करनी है वो इन्फॉर्मेशन, और इन फॉर्म ऑफ डेटा आपको अपने पास रखना है। तो ये अगर आप एक्सरसाइज करोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे। भाई ये एक पहला अभी ये प्रोसीजर है डिस्कनेक्ट हो आइटम्स को जाएगा, सीखना। तो इस मीटिंग के ओके जस्ट बाद ओके, में नया लिंक शेयर करूंगा और उसे फिर हम प्लीज लोग प्लीज, मैं कंटिन्यू मैं करेंगे। अब मैं यही स्टॉप भी कर रही हूँ, अब नए लिंक में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ठीक ओके है। तो ओके, थैंक यू।